কৃষ্ণ ভক্তদের মেরেছে, দুর্গা মায়ের ভক্তদের মেরেছে, নির্যাতনা দিয়েছে, দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল ভেঙেছে এবং তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে, হিন্দুদের তাড়িয়ে তাদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজের মেয়ের সবকিছু লুটে যাওয়ার পর, মেয়ের সামনে মায়ের সবকিছু লুটে যাওয়ার পর, বাবাকে মেরে তার হাত পা ভেঙে দেওয়ার পর, সন্তানকে মার্ডার করার পর, তার মাথার তলে ঘর পর্যন্ত নেই, তার আরাধ্য দেবতার মন্দির পর্যন্ত নেই, সে না সকাল না বিকেলে সে আরাধনা তপস্যা, তার পুজো, তার কোনো কিছুই সে আর করতে পারছে না। তার পাশে দাঁড়ানোর মতন কোনো লোক নেই, তার পাশে দাঁড়ানোর মতন সরকারও নেই, তার পাশে দাঁড়ানোর মতন পুলিশ প্রশাসন নেই। আর সেই দেশে তাদের এই অবস্থা। তাই কিছুদিন আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য সংগঠনকে আহ্বান করে সেই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা পোর্টবিলারের বুকে জঙ্গলিঘাট থেকে নিয়ে পোর্টবিলারের বাজার পর্যন্ত, তিরঙ্গা পার পর্যন্ত একটা আক্রোশ র্যালি বের করা হয়। সেই আক্রোশ র্যালিতে আমরা সকলে থাকি এবং কমসে কম 2,5-3 হাজার লোক র্যালিতে যেয়ে এবং বাজারের ভিতরে কমসে কম 5,000 লোক সেখানে সমাগত হই এবং সেখানে একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করি। আর সেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করি এই জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে চেতাবনী দেওয়া, ভারত সরকারকে অনুরোধ করে বাংলাদেশ সরকারকে চেতাবনী দেওয়া যে হিন্দুদের রক্ষা করার দায়িত্ব সেই দেশের অল্প সংখ্যক হিন্দুরা, বৌদ্ধরা, জৈনরা, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের হওয়া উচিত। আমাদের দেশে যাদের আমরা অল্প সংখ্যক বলে মান্যতা দিয়েছি তারা বাস্তবে অল্প সংখ্যক নয়, তারা এত সংখ্যক যে পৃথিবীর 10টি দেশের বরাবর সংখ্যক তারা এই দেশে। তাদের পৃথিবীতে 56টি দেশ আছে, আর সেই 56টি দেশ, কোন দেশে 1 কোটি মানুষ, কোন দেশে 2 কোটি মানুষ, কোন দেশে 50 লাখ মানুষ, কোন দেশে 10-20 লাখ মানুষ নিয়ে তারা একটা দেশ গড়েছে। পৃথিবীর সবথেকে যে বেশি তাদের জনসংখ্যা, তারপরে দ্বিতীয় স্থানে ভারতবর্ষে তাদের জনসংখ্যা। তাই তারা অল্প সংখ্যক আদৌ হয় না, কিন্তু তারা আমাদের রাজনৈতিক সাহায্যের ফলে তারা এদেশে অল্প সংখ্যক হিসাবে গণিত। পাকিস্তানে যত সংখ্যা নেই পুরো দেশে, তার থেকে বেশি তারা আমাদের দেশে। আফগানিস্তানে যত সংখ্যা নেই তার থেকে বেশি তারা আমাদের দেশে। বাংলাদেশে যত সংখ্যা নেই তাদের, তার থেকে বেশি আমাদের দেশে। 56টি দেশের ভিতরে কেবল ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে বাকি সমস্ত দেশের থেকে বেশি সংখ্যা আমাদের দেশে। অর্থাৎ আমাদের দেশে যে তথাকথিত অল্প সংখ্যক, তারা কিন্তু পৃথিবীর 10টি দেশের বরাবর। তাদের আমরা অল্প সংখ্যক হিসেবে মান্যতা দিচ্ছি, তাদের আমরা সুরক্ষা দিচ্ছি। তাদের একটা চড় হলে পরে আমাদের বিশ্বে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে যে ভারতের অল্প সংখ্যক কষ্টে কেন, ভারতের অল্প সংখ্যক নির্যাতনা কেন, ভারতের অল্প সংখ্যকের রক্ষা হচ্ছে না কেন, তার জবাব ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের গৃহমন্ত্রীকে দিতে হয়। তবে 30 কোটি মানুষ হয়েও যদি তারা অল্প সংখ্যক হয়, ভারতে তারাও হিন্দুদের উপরে নির্যাতনা করে। ভারতে হিন্দু 100 কোটি হয়েও হিন্দু বলে আমায় রক্ষা করো, আমায় রক্ষা করো, আমায় রক্ষা করো। লজ্জার ব্যাপার। ডুবে মরা উচিত আমাদের হিন্দুদের, তবু আমরা ডুবে মরি না। তবু আমরা বলি ওই 30 কোটি আলারা আমাদের মেরেছে ভেড়ার মতন, আমাদের রক্ষা করো, আমাদের রক্ষা করো, আমাদের রক্ষা করো। আর যদি তাদের উপরে আমরা বাদে প্রতিবাদ করি, তবে তারা এমন ভাবে চেঁচায় যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের
রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তারা কৈফিয়ত চায়, বলো ওই 30 কোটি মানুষের ভিতরে কেন একটিকে পিটিয়ে মারলে, কৈফিয়ত দাও। অসহিষ্ণু দেশ তোমাদের ভারত, কেন একটাকে পিটিয়ে মারলে? বলে সে আমার গ্রামের সমস্ত মেয়েদের রেপ করছে, সেইখানে ওপেন গরু কাটছে, সে নানান ধরনের অত্যাচার করছে, সে নানান ধরনের ড্রাগস ফ্রাগস বিক্রি করছে, আমাদের জওয়ান ছেলেদের সে নেশায় নামিয়ে দিচ্ছে। তাইতে বহুবার মানা করার পরে তাকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে গ্রামের লোক মিলে। না, তবুও কেন মারবে? কৈফিয়ত দেওয়া হবে। যদি সেইখানে কৈফিয়ত দিতে হয় তো বাংলাদেশের 30% হিন্দু থেকে নেমে এসে 7% মাত্র হিন্দু। 17 কোটি টোটাল মানুষের ভিতরে 1 কোটি মাত্র হিন্দু। তাদের কোথায় কোথায় তাদেরকে মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাদের কেন মারা হয়? কি বাংলাদেশ সরকারের উপর প্রশ্ন আসা উচিত নয়? বাংলাদেশ সরকার তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা দায়ী নয়? বাংলাদেশ সরকারের উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করা আমাদের কর্তব্য নয়? আজ আমরা সবাই মিলে জানি যে আমাদের মধ্যে এমন হিন্দু জাতি রয়েছে, हमारे बीच वैसा हिंदू है जो हिंदू का नाम सुनने से ही नीचे गिला हो जाता है। अगर हम बोले हिंदुओं के ऊपर क्यों, तो सबसे पहले वही मुंह देता है, उसका ही मुंह इतना प्रारंभ हो जाता है, वो आंसू छोड़कर भाग जाता है। वो या तो दरवाजा बंद कर देता है घर का। नालायक डरपोक इंसान क्या हिंदुओं का कल्याण कर सकता है? आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, आज एक हमारे देश में गैर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, एक के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो विश्व का 56 देश उसका जवाब चाहता है भारत सरकार के ऊपर। क्यों हुआ बताओ? क्यों आपका देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? तो क्या हमारा हिंदुओं का ये कर्तव्य नहीं बनता कि पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाला हिंदू, बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, उसके ऊपर जब अत्याचार होता है, उसका बहन बेटियों को जब भेड़ियों ने नोचता है, उसको जब मार डालता है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भी वही 56 देश से प्रश्न करें कि बताओ अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार क्यों बंद होगा? कब, क्यों होता है बताओ? क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं है क्या? अगर हम हिंदू के ऊपर अत्याचार क्यों, अगर ये बात हम पूछे तो क्या हम सांप्रदायिक हैं? क्या हम नगण्य हैं? वे प्रश्न कर सकते हैं उसके कौम के लिए, वे प्रश्न कर सकते हैं वो अपने लोगों के लिए, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हजारों वर्षों से दबाया गया, हमें हजारों वर्षों से भारतवर्ष को दबाया गया। भारतवर्ष को टुकड़ा करके 30 से ज्यादा टुकड़ा किया। हम हिंदुओं ने, सबके अंदर भगवान है, हम सब सनातनी हैं, सबके अंदर भगवान का अंश है, वो छोड़ करके हम सहन किया, ये हम गलती किया। अगर सबके अंदर भगवान का अंश है इसलिए हमें माफ कर देना चाहिए। अगर ये सिद्धांत अगर सही होता तो कुरुक्षेत्र में क्या युद्ध होता? क्या दुर्योधन के अंदर भगवान का अंश नहीं था? क्या कंस के अंदर भगवान का अंश नहीं था? क्या दुर्योधन के अंदर, कंस के अंदर, शिशुपाल के अंदर इतना राक्षसी, इतना राक्षस को जो मारा है, उनके अंदर क्या भगवान का अंश नहीं था? अगर भगवान के अंदर अंश था तो भगवान ने क्यों मारा? भगवान ने अर्जुन को कहा कि का पुरुष, डरने वाला इंसान
कर्तव्य से विमुख होने वाला इंसान और धर्म का माला जपने वाला इंसान और अपना जवाबदेही से दूर भागने वाला इंसान, वे कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता है। तुम जिस प्रकार अपना देहोभान में युद्ध करो कि तुम्हारा देहोभान में जो राक्षस छुपा हुआ बैठा हुआ है, तुम उसका मुकाबला करो। कैसे? तप से, दान से, यज्ञ से, सेवा से, ज्ञान से, भक्ति से तुम अपना अंदर का राक्षस को मारो। उसी तरह तुम पराक्रमी भी बनो। चलो तुमको लेकर चलते हैं महादेव से अस्त्र शस्त्र दिलाने। करो महादेव का पूजन, प्राप्त करो महादेव का अस्त्र, महादेव का शस्त्र। चलो जाओ स्वर्ग में, बन जाओ इंद्रदेव का भक्त, ले लो इंद्र जी का रथ, जिस रथ में कोई मरता नहीं है, जिस रथ के ऊपर सवार होने से कोई नहीं मार सकता, उस रथ को तुमको प्राप्त करना है, क्योंकि आगे चल करके तुम्हें युद्ध लड़ना है। जाओ स्वर्ग में। अर्जुन गया, स्वर्ग में गया, इंद्रदेव को प्रसन्न किया, रथ हासिल किया। भगवान ने बताया जाओ जाकर शिव जी को प्रसन्न करो, जाओ मां दुर्गा को प्रसन्न करो, मां दुर्गा से वर प्राप्त करो, जाओ भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, जाओ भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करो, ब्रह्मास्त्र का प्राप्ति करो। क्योंकि तुम्हें अंदर से भी और बाहर से भी युद्ध लड़ना है, असत्य के प्रति सत्य का विजय प्राप्त करना है। तुम केवल अपना अंदर का असुरी मारने का ढंग दिखाकर तुम जाकर के छुप नहीं सकते कायरो, तुम नपुंसक नहीं बन सकता। भगवान ने गीता का श्लोक बताया है, अगर आप बोलोगे कहां ये श्लोक है, मैं अभी बता सकता हूं कहां पर ये श्लोक बताया है। ये दूसरा अध्याय में बताया है भगवान ने। तुम अगर अपना धर्म के प्रति सही पालन नहीं करोगे, तुम अपना धर्म के लोगों के लिए अगर रास्ते पे नहीं आओगे, तुम उसके लिए साहस से, हिम्मत से और शर्म को छोड़ करके उसके लिए प्रतिवाद नहीं करोगे, उसका सहायता नहीं करोगे, उसका पक्ष में खड़े नहीं होगे, तो तुम कायर हो, तुम धार्मिक कहने का या सनातनी कहने का लायक नहीं हो। इसलिए आज हमारा बंगाल का अवस्था देखिए, बंगाल में सब डर डर से रहते हैं हम। बंगाल में 35% आतताई हो गया है। बंगाल में 35% ये जिहादी आतताई, ये जिहादी आतंकवादी, ये जिहादी समर्थक बन गया है। आज पश्चिम बंगाल में भी हम डर के मारे जी रहे हैं। कश्मीर में हम काम करने तक नहीं जा सकते। जो कश्मीर में ब्राह्मणों का था, जो कश्मीर में ब्राह्मणों का पूरा कश्मीर ब्राह्मण था, वहां से ज्ञान पृथ्वी में बांटता था। जो भारत विश्वगुरु होने में कश्मीर का सबसे अधिक हाथ था, बंगाल का भी हाथ था, केरल का भी हाथ था। एक भी गैर हिंदू एक समय नहीं था। उस समय आज वहां हिंदू विहीन हो गया है। हिंदुओं को काम करने का फुर्सत नहीं, काम करने का क्षमता नहीं, काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिहादियों ने मार डालता है। और उस जिहादियों ने मार डालता है तो एक भी जिहादी उसका प्रतिवाद के लिए रास्ते पे नहीं आता। কতদিন আমাদের চুপ করে থাকতে হবে, কতদিন আমরা ভয় পালাবো। আমরা একবার পালিয়ে এসেছিলাম ঢাকা থেকে, পালিয়ে এসেছিলাম নোয়াখালী থেকে, পালিয়ে এসেছিলাম চট্টগ্রাম থেকে, পালিয়ে এসেছিলাম বরিশাল থেকে, খুলনা থেকে, পালিয়ে এসেছিলাম যশোর থেকে, পালিয়ে এসেছিলাম ময়মনসিংহ থেকে, পালিয়ে এসেছিলাম চট্টগ্রাম থেকে, পালিয়ে এসেছিলাম আমাদের সব সম্পত্তি ছেড়ে, পালিয়ে এসেছিলাম আমাদের দালান ছেড়ে, পালিয়ে এসেছিলাম আমাদের সোনাদানা ছেড়ে, পালিয়ে এসেছিলাম আমাদের জোয়ান সেই সময় সন্তানদের ছেড়ে,
আমাদের ঘর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের জোয়ান মেয়েদের আমাদের চোখের সামনে। আমরা তাকে ফেরত আনতে পারিনি। যারা এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ বলতে পারে এই কথা সত্য নয়, আমরা আজ আমাদের সন্তানদের কাছে গোপন রেখেছি। আমরা গোপন রেখেছি জানিস, জানিস তোর পিসিমারা 4 বোন ছিল, এক বোনের কথা বলি 3 বোন চেপে গেছি। কেন? 3 বোনকে জিহাদিরা আমাদের সামনে তার ইজ্জত নিয়ে মেরে ফেলেছে। সেই সম্মানের জন্য আমরা বলি না। তোর পিসিমাদের বয়স তখন 15 থেকে 30-এর ভিতরে ছিল। আমরা সব ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি। জানিস তোর মাসিমা কজন ছিল? জানিস তোর পিসিমা কজন ছিল? জানিস তোর ঠাকুমারা কয় বোন ছিল? জানিস তোর দিদিমারা কয় বোন ছিল? তার কতগুলি জিহাদিরা নিয়ে জবরদস্তি তাদেরকে বুরকা পরিয়েছে, জবরদস্তি তাদেরকে কলমা পড়িয়েছে। আমরা কিন্তু তাদেরকে বলিনি। আমাদের আগামী প্রজন্মকে কিন্তু আমরা বলিনি, আমাদের গোপন রেখেছি। ভুল করেছি। আমরা হয়তো ভাবছি আমরা নিরিবিলি আছি। ভুলে যান, ভুলে যান, নিরিবিলি ভুলে যান। আজকে আমরা একটা সন্তান করে সেই সন্তান কোথাও গেলে পরে মনটা টিপি 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 করে আমাদের। আমার একটাই মাত্র সন্তান কি হয়ে যায়? একটা সন্তানের যদি হাঁটুতে ব্যথা পায় মনে হয় আমার জীবনটা চলে গেল। তারা 10টা-15টা সন্তান তৈরি করেছে। তারা 10টা-15টা সন্তান তৈরি করেছে। তারা এটা চিন্তা করে তৈরি করেনি যে আমাদের সমস্ত সন্তানকে আমরা MBBS ডক্টর বানাবো, উকিল বানাবো। তারা চিন্তা করেছে একটা ডক্টর হবে, একটা উকিল হবে, একটা রাজমিস্ত্রি তো হবে, একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি তো হবে, একটা পেন্টার তো হবে, সরকারি স্কুলের ফ্যাসিলিটি তো আমরা পাবো। সমস্ত দিকটা দিয়ে আমরা করব কবজা, সমস্ত দিকটা দিয়ে আমরা করব দখল। আর এই কাফেরদের উপরে হবে আমাদের রাজ। আর আমরা কায়েম করব আমাদের মজহব। ভেবেছেন কখনো? যারা আগামী জন্ম ভাবে না, যারা গত জন্মের প্রতারণাকে মনে রাখে না, যারা নির্যাতনাকে ভুলে যায়, যাদের মনে থাকে অনেক ভয়, যারা কাপুরুষ, তাদের বাঁচার অধিকার নেই। আমরা কিছু করতে না পারি, সংগঠিত হতে পারি, তো প্রতিবাদটা তো করতে পারি। আমরা হয়তো মাতাল হয়েছি, আমরা হয়তো 5 বার আরাধনা করি না, আমরা হয়তো অনেক কিছু খেয়ে দিয়ে শরীর রুষ্টপুষ্ট করি না, আমরা হয়তো মদ খেয়ে শরীরটাকে শেষ করে দিয়েছি। আমাদের গায়ে হয়তো নেই কিছু, কেননা যদি আমাদের ভিতরে সেই শক্তি আমরা দেখাতে পারতাম, তাহলে কি ওই সেই অন্ধ্রপ্রদেশের সেই জঘন্য গুন্ডা, রাজনৈতিক গুন্ডা, আমি কারোর নাম নেব না, আপনারা জানেন, টিভিতে এসেছিল, বলেছিল ভারতবর্ষ থেকে কেবল 15 মিনিটের জন্য যদি পুলিশ আগে থেকে বলে দেয় যে ভারতবর্ষের থেকে 15 মিনিট পুলিশ প্রশাসন কোনো কাজ করবে না, তাহলে এই সমস্ত হিন্দুদের আমরা দেখিয়ে দেব, আমরা শেষ করে দেবো সমস্ত হিন্দুদের। জানেন আপনারা এই খবর কি করে বলতে পারে? তারা এই করে বলতে পারে, তারা জানে আমরা হিন্দু, আমাদের একতা নেই। हम हिंदू, हम एकता में नहीं हैं, हम बांटे हैं, हम 5 बार आराधना तो नहीं करते, हम शरीर को रुष्ट पुष्ट नहीं करते, हम सब एक ही संतान है घर का। हमारा माँ बाप हमें चादर से, आंचल से, पैर में बेड़ी दे करके हमें घर के अंदर रखेगा। बेटा वहां हो रहा है, वहां तुम मत जाओ, तुम नहीं जाना, नहीं 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 जाना, वो सब खराब लोग हैं, तुम नहीं जाना। कैसे बचाएगा? आज कोई गैर हिंदू अगर यहाँ किसी एक हिंदुओं को मारने आता है, मारता है, घर से हम बोलेंगे अरे वो झमेला में नहीं जाना, पुलिस आएगा, झमेला कौन जाएगा, मेरा एक ही तो बेटा है, क्या है, वो आराम से नोच के चला जाएगा, आपका बेटी को नोच कर चला जाएगा, गांव का बेटी को नोच कर चला जाएगा, जबरदस्ती उठाकर लेकर चला जाएगा। दिन आ रहा है सामने,
सारा जगह पर हो रहा है, कुछ ज्यादा दिन नहीं है। कम से कम हम लड़ नहीं सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। कम से कम हम एक प्रतिवाद तो कर सकते हैं, हम उनका सहायता में खड़ा तो हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। कैसे ये मरा हुआ हिंदू समाज को कैसे जगाया जाए, कैसे मरा हुआ हिंदू समाज हम कैसे एकत्रित हो। हम मरा हुआ नहीं रहना चाहते, हम सोया हुआ नहीं रहना चाहते, हम कोई दंगा हंगा भी नहीं करना चाहते, हम किसी का प्राण देना नहीं चाहते, लेकिन हम प्रतिवाद तो कर सकते हैं ना, हम जवान तो खोल सकते हैं ना, हम विरोध तो कर सकते हैं उन आतताई का, जो आतताई हमारा हिंदू समाज को समाप्त करने के लिए उठ खड़ा है, लगातार कार्य कर रहा है। हम उनका विरुद्ध में आवाज तो उठ सकते हैं ना, हम एकत्रित तो हो सकते हैं, लेकिन हम एकत्रित कैसे होंगे? हम तो भाषा में बटे हुए हैं, हम तो बंगाली है, कोई तमिल है, तो ये तो बंगाली मंदिर हुआ, कोई तमिल मंदिर हुआ, ये तो लोकल मंदिर हुआ, वो तो अमुक प्रदेश का है, वो तो अमुक जगह का है, अमुक प्रांत का है। इसी के कारण आज से 1000 साल पहले हमारा देश गुलाम हुआ था। हमारा देश में उस समय भी कृष्ण भक्ति था, उस समय भी शिव भक्ति था, उस समय भी गौरंग महाप्रभु का भी भक्ति था, उस समय भी दुर्गा के ऊपर भक्ति था, सब देवी देवता थे और सब गुरु भी थे। भक्ति का कोई कमी नहीं थी, अर्थ का भी कोई कमी नहीं था। कमी था तो केवल हमारा एकता का मानसिक था। हम कभी एकता बनने का प्रयास ही नहीं किया। हम बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, कास्ट के नाम पर बटे हुए हैं। कभी शूद्र ब्राह्मण को गाली दे रहा है, वे लालच के मारे अलग संगठन कर रहे हैं, कभी ब्राह्मण अलग से संगठन कर रहे हैं, कभी वो शूद्र को गाली दे रहा है, कभी शूद्र ब्राह्मण को गाली, कभी ब्राह्मण शूद्र को गाली, कभी कायस्थ वैश्य को गाली, कभी वैश्य कायस्थ को गाली, यानी क्षत्रिय को गाली। हम कास्टिज्म में बटे हुए हैं। ये कास्टिज्म हमें भूलना होगा। हमें हिंदू एकता के लिए संगठन करना होगा, हिंदू एकता के लिए सख्त होना होगा, शक्ति बनाना पड़ेगा। हमें दुर्बल अगर हम हो जाए तो ये दुर्बल हिंदुओं का वास्तविक रूप नहीं है। क्या शिवाजी महाराज दुर्बल थे? क्या हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुर्बल थे? क्या हमारा भगत सिंह दुर्बल थे? हमारा समाज दुर्बल नहीं था, ना बांग्ला समाज दुर्बल था, ना किसी प्रांत का समाज कोई दुर्बल था। हजारों साल से हमें दुर्बल बनाया गया है। हमें दुर्बल मानसिकता, इस भेदभाव का मानसिकता, इस मानसिकता से छोड़ करके एक बार विचार करना होगा, विचार करना होगा कि कैसे हम कश्मीर से पूरा हिंदू, आज वहां हिंदू बिल्कुल नहीं है। आज कश्मीर का हिंदू शरणार्थी बन गया, वे अपना घर में नहीं जा सकता, इस आतताई के कारण, इस जिहादी मानसिकता के कारण, इस जिहादी मजहबी समर्थक के कारण। आज अफगानिस्तान में जहां गांधारी का गांधार, वो आजकल हो गया कंधार, वही अफगानिस्तान है। गांधारी का मायके यानी गांधारी का पिता का वहां जो राजा सुबल का राज्य था, एक राज्य था हमारा, वो अफगानिस्तान आज हिंदू है नहीं है। हम हिंदू से शांति के प्रतीक बौद्ध बने पहले, और एक थप्पड़ मारने से दूसरा गाल आगे देने वाले हो गए थे। आज हमारा कहाँ वो बौद्ध, कहाँ हिंदू से हम बौद्ध बने शांति दिखा करके, आज अफगानिस्तान से हम सफाया हो गए हैं।
पाकिस्तान में भी वही, जब हम आजाद हुए, आजाद क्या कहूं, जब हम तो आजाद नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे जब हमारा देश टुकड़ा हुआ, और देश जब टुकड़ा हुआ और पाकिस्तान में जो हम रह गए थे वहां पर हम कितना प्रतिशत था, आज पाकिस्तान में कितना प्रतिशत है, वहां का हिंदू, वहां का जैन, वहां का बौद्ध, वहां का सिख, आज क्या पोजीशन में है, क्या तकलीफ में है वो। एक बार आप लोगों ने केवल न्यूज सुना, दो चाय दो बिस्कुट, न्यूज सुन लिया, बढ़िया है, न्यूज सुना, टीवी में हो रहा है, हमारा घर में थोड़ी ना हो रहा है, तो टीवी में देख रहे हैं, हमारा क्या आता जाता है। अगर अफगानिस्तान में होने वाला हिंदुओं का तकलीफ, अगर आपका तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान में होने वाला हिंदुओं का तकलीफ अगर आपका तकलीफ नहीं है, कश्मीर में होने वाला, केरल में होने वाला, आसाम में होने वाला, आंध्र प्रदेश में होने वाला हिंदुओं का तकलीफ अगर आपका तकलीफ नहीं है, पश्चिम बंगाल में होने वाला और बांग्लादेश में होने वाला हिंदुओं का तकलीफ अगर आपका तकलीफ नहीं है, तो सोच लो कि आप भी यहां सेटलर बन के आया था। उस समय बांग्लादेश तो नहीं बनी थी, क्योंकि बांग्लादेश तो 71 में बना, हम तो 64 में पैदा हुआ। तो जो व्यक्ति 64 में पैदा हुआ वो 71 में बना बांग्लादेश, तो व्यक्ति तो बांग्लादेशी नहीं बन सकता, बांग्लादेशी नहीं हो सकता। आप में से बहुत लोग हैं जो 1950 में पैदा हुआ, 1940 में पैदा हुए, 1960 में पैदा हुए, 65 में पैदा हुए, 1970 में भी हो सकते हैं। अगर आप 1970 तक भी पैदा हुए तो आप बांग्लादेश का नहीं हो, तो आप कह सकते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, पूर्व पाकिस्तानी हो, ये भी कह सकते हैं। और आप पाकिस्तानी हो तो ये देश में क्या कर रहे हो, ये देश में आप क्यों आए, अंडमान में जारुआ का बीच में क्यों रहे, यहां जो एक समय खून लेता था, खून चूसता था, अपना खून क्यों दिए, यहां इतना तकलीफ में क्यों थे आप इतना साल से। एक बार स्मरण करिए कि जिस समय उस समय के आप पैदे हैं तो आपको याद होगा। अगर आप 1960 के बाद वाला पैदा है या 65 के बाद वाला पैदा है या 70 का बाद वाला पैदा है तो आपको पता नहीं होगा। लेकिन आपको अगर पता नहीं होगा तो आप पता जरूर करिए किससे, आपका घर में कौन 1965 से पहले पैदा हुआ। वो व्यक्ति बांग्लादेशी तो नहीं है, पाकिस्तानी भी आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनको पाकिस्तानी भी नहीं कह सकते। क्यों पाकिस्तानी नहीं कह सकते? क्योंकि वो अगर पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान में ही रहते। उन्होंने पाकिस्तान स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आज का तथाकथित बांग्लादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा जहां हमारा हिंदुस्तान टुकड़ा हुआ, हमें इस गद्दारों के साथ, इस जिहादी बेईमानों के साथ छोड़ दिया गया, हम इनके साथ नहीं रह सकते। हम हिंदुस्तानी हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। वे अपना घर, अपना दौलत, अपना जमीन जायदाद सब छोड़ करके रिफ्यूजी बन करके यहां पर आ गया। तो आप पाकिस्तानी भी नहीं हो, आप जान लो आप पूर्व पाकिस्तानी भी नहीं हो, आप बांग्लादेशी भी नहीं हो, आप हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तानी ही रहोगे। और अगर उस समय आप हिंदुस्तान में रहोगे तो क्या सोच करके यहां आए थे? नहीं, हम हिंदुओं के बीच में रहेंगे। तो जब उस समय सोच के आए थे आप हिंदुओं के बीच में रहोगे, तो आज हिंदू बोलने में आपको डर क्यों है? आज आप हिंदू के नाते एक साथ क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? क्या डर, क्या शर्म है? आप कहेंगे मेरा दोस्त है जो गैर हिंदू है, वो नाराज हो जाएगा। तो एक बार आप सोचो
कि आपका जो दोस्त है, जो गैर हिंदू है, क्या वो आपके बारे में सोचता है? एक बार बुला के देखो उनको अपना घर में कि ये जुबाई नहीं है, तू तो मेरा दोस्त है ना, ये जुबाई नहीं है, तू हमारे साथ चिकन खा, नहीं खाएगा, सारा दोस्ती निकाल देगा आपका। तुम एक बार उनसे पूछिए, अरे हम तो बृहस्पतिवार को नहीं जाते लक्ष्मी मंदिर में, हम तो सोमवार को नहीं जाते हैं शिव मंदिर में, काहे का शुक्रवार को 11 बजे तू भाग जाता है ऑफिस से? हाँ, काम करना है ना, तो करने से कर, आपको छोड़कर वो भाग जाएगा। आजमा लेना, मेरा बात आजमा लेना। मैं एक दुकानदार हूं, रिटेल दुकानदार हूं। मेरे दुकान में अगर 40 हिंदू आता है तो 60 गैर हिंदू आता है, और मैं इस मंच में भाषण दे रहा हूं। लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि सत्य है ये। मेरा कस्टमर खराब हो जाए, मेरे अंदर और कोई आपद विपद आ जाए, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। हमें उनके लिए भी थोड़ा आंसू बहाना होगा, हम उनके लिए भी उनके साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो वो किस लिए, किसके भरोसे रहेंगे? अगर हमारे देश में किसी एक अल्पसंख्यक के ऊपर हाथ उठता है तो छप्पन देश को जवाब देना पड़ता है कि क्यों हमारा भारत में अल्पसंख्यक के ऊपर हाथ उठाया, वो इतना हरामी था, इतना खराब था, हो सकता है आपने हाथ नहीं उठाया। फिर हमारा हिंदू तो अहिंसा का पुजारी है, हमारा हिंदू तो किसी दूसरे का माँ बेटी पर हाथ नहीं देते, हिम्मत भी नहीं है। हम तो सनातनी मानते हैं, सब देह में सनातनी है, हम तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, फिर हमारे ऊपर हमला क्यों? क्योंकि आपका जो दोस्त है, जो दोस्त शर्म के मारे आप हिंदू बोलने के लिए, हिंदुत्व के लिए आगे नहीं आ सकता है, उस दोस्त के लिए वो दोस्त ने कसम खा के रखा है कि जब तक काफिरों को ज़कात नहीं दिलवाऊंगा, जब तक काफिरों को अपना मजहब में नहीं लाऊंगा, जब तक उनसे उनका देश नहीं छीनूंगा, तब तक अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हमारा ये जान अल्लाह ने दिया है, इसलिए क्योंकि काफिरों को मारने के लिए दिया है। ये उनका ग्रंथ है। मैं ग्रंथ का वो पॉइंट आपको बता सकता हूं, और वही कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते, आप बोलेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं है, कुछ तो अच्छा मेरा दोस्त है, वो तो बहुत समन्वय में रहता है। कैसा समन्वय में रहता है? तो बोले होली खेलने का दिन मेरा घर आ जाता है, और मेरा जवान 2 बेटी है, उसके साथ होली खेलता है, तो आप नींद में हो, क्योंकि वो आपका जवान बेटी आपका बहन के साथ होली खेलने आ सकता है, सर्वधर्म समन्वय दिखा सकता है, लेकिन आपके साथ ध्यान नहीं कर सकता। बांग्लादेशों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, आपके साथ आके खड़ा नहीं हो सकता। वो आपका दोस्त का ग्रुप एक बार रोड में जाकर नहीं बोल सकते कि ये जिहादी आतताई मुर्दाबाद, नहीं बोल सकते। कैसा दोस्त है आपका? अगर आपका दोस्त है तो आपका साथ देना होगा। प्रकृत बंधु সেই যে বিপদে আপনার সাথে থাকে, প্রকৃত বন্ধু সেই যে আপনার ধর্ম, আপনার সংস্কৃতি, আপনার মা, আপনার বোন, আপনার সম্পত্তিকে সে শ্রদ্ধা করবে, আপনাকে সে প্রোটেকশন দেবে, আপনাকে সে
জীবন দিয়ে আপনাকে রক্ষা করবে, প্রকৃত বন্ধু হবে সেই। এখানে যদি কাল কোন জিহাদি আততায়ী দিয়ে যদি আপনাদের উপরে হামলা হয়, এই চ্যাটার্জি বন্ধু, এই যে মিনতি বিশ্বাস বন্ধু, এই জওহরলাল দাস বন্ধু, এই শৈলেশজি বন্ধু, এই থিতন চ্যাটার্জি বন্ধু, এই জ্যোৎস্না দাস বন্ধু, এই বন্ধুগুলি আপনাদের সামনে দেখতে পাবেন। আজ পর্যন্ত করে এসছে, দেখিয়ে এসছে। বাকি কোন বন্ধু আপনাদের যখন এরকম হবে, ভগবান করুক না হোক, কিন্তু যদি আপনারা প্রতিবাদে না নামেন, যদি আপনারা নিজেদের লজ্জাকে না ত্যাগ করেন, যদি আপনাদের ভিতরে কোনো রকম কোনো ভয় আশঙ্কা থেকে যায়, যদি সত্য বলার সাহস না রাখতে পারেন, যদি এক দুর্বল সমাজ গড়ে তোলেন, যদি সবল সমাজকে গড়ে তুলতে না পারেন, আগামী দিনে আপনারাও কিন্তু বাঁচবেন না, এটা কিন্তু বলে গেলাম। কেন বলি হয় ছাগলের, বলি ঘোড়ার হয় না, বলি বাঘের হয় না, বলি কিন্তু ছাগলের হয়। কেন ছাগল বলতেও জানে না, ছাগল প্রতিবাদও করতে জানে না। বাঘ ধরতে যাবেন তো বাঘ প্রতিবাদ করবে, ঘোড়াকে ধরতে যাবেন ঘোড়া পা দিয়ে লাথি মেরে প্রতিবাদ করবে, কিন্তু ছাগল প্রতিবাদও করে না, ছাগল কিছুই করে না। তাই সে ছাগল, সে বলি হবার আগেও সে পাতা খায় আর ঘাস খায়। একটুখানি ভাবতে হবে আমাদের সমাজকে, যে আমাদের সমাজ ছাগল হয়ে আমরা ঘাস পাতা খাচ্ছি না তো? আমরা টিভি দেখে, চাকরি করে, ব্যবসা করে, টাকা গুনে, খাওয়া দাওয়া করে আমরা ঘুমোচ্ছি না তো? আমাদের এই তাকিয়ে তো আছি এই চক্ষু দিয়ে, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু আমাদের ঘুমিয়ে নেই তো, আমাদের আক্কেল ঘুমিয়ে নেই তো। বন্ধু বন্ধুর জায়গায় থাকুক, আমরা তো কারোর ক্ষতি করছি না, আমরা তো বলছি না চলো অমুকের ঘর জ্বালাও, অমুকের এ করো, গাড়ি জ্বালাও, বলছি না তো, বলবো না, এটা আমাদের কাজ নয়। কিন্তু কেউ যদি আমাদের ঘরে, কেউ যদি আমাদের মা বোনেদের উপরে, কেউ যদি আমাদের সম্পত্তিতে, কেউ যদি আমাদের মান সম্মানে, কেউ যদি আমাদের জীবনের উপরে হামলা করে চলেছে, প্রতিবাদটুকু কি করবো না? আমরা কি এতই নির্বল হলাম? আমরা কি এতই লজ্জা শরমানা হয়ে গেলাম? এটাকে কি ধর্ম বলা চলে? এটাকে কি ধর্ম? যদি ধর্ম হতো তাহলে অর্জুন বলেছিল যে সামনে আমার গুরুদেব কৃপাচার্য, সামনে আমার শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য, সামনে আমাকে সংস্কার দেওয়া বিশ্বদেব, যে কোলে কাঁধে মানুষ করেছে, কান্দে নিয়ে কাহানি শুনে শুনে মানুষ করেছে, সামনে আমার সেই ভীষ্ম, সামনে আমার আত্মীয় স্বজনেরা, যাদের সাথে ছোটবেলায় খেলেছি, যারা আমাকে কত আদর করেছে, ছোটবেলায় আমার হাসি মুখে গেছে যাদের সাথে, তাদের আমি বধ করব? যারা আমার আত্মীয় স্বজন সবাইকে, এই বধ আমি করব না। হে গোবিন্দ, এই পাপের কাজে আমাকে নেবেন না। এর থেকে ভালো আমি বৈষ্ণব সেজে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গ্রামে গঞ্জে আর বনে বনে ঘুরে বেড়াবো, এতেও আমি সার্থক মনে করবো। তা নাহলে কিন্তু আমি নরকে প্রতীক হব। ভগবান বলেছে পাগল, বুদ্ধিহীন অর্জুন, তোকে কে বলেছে রে যে সত্যের প্রতিবাদ করতে জানে না, যার ভিতরে লজ্জা থাকে, যার ভিতরে ভয় থাকে, সে কিসের বৈষ্ণব, সে কিসের হিন্দু, সে কিসের সনাতনী, সে তো কিসের মানুষ? সে তো নরাধামে যাবে, সে তার তো কোনো গতি হবে না। তাই যে আমি তোকে বলছি कि सर्वधर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं भज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयासामि मा शुचा। তুই এত চিন্তা ছাড়, এত নিয়ম ছাড়, এত বুদ্ধিও ছাড়, তুই লজ্জা ছাড়, সব ধর্ম, সব সমস্যা, সব কিছু ছাড়, সব বাধা বিঘ্ন ছাড়।
তুই আমার শরণাগত হ, আমি যা বলছি তুই তাই শোন। তোর ইহ জন্ম মনুষ্য জন্ম থাকতে হবে, এবং তুই মরে গেলেও তোর জন্ম কিন্তু আমার চরণে স্থান পাবে। তাই সত্যের জন্য প্রতিবাদ কর। অর্জুন, তুই ভাবিস না যে তুই লড়ছিস, কারণ এদেরকে আমি মেরে রেখেছি, আগে থেকেই মেরে রেখেছি। এরা জীবিত, খালি উপরে দেখতেই জীবিত, ভিতরে এরা কিন্তু কেউ জীবিত নয়, এরা সব মৃত। কি করে মৃত? कैसे मृत है सब? बोले इसका जमीर मर गया है, ये सबका जमीर मर गया है, ये सब संस्कारहीन हो गया है। ये दुर्योधन को देखो, ये बड़ों को सम्मान नहीं देता। ये दुशासन को देखो, ये स्त्री जाति का सम्मान नहीं देता। ये कर्ण को देखो, इतना दानी है, इतना सब कुछ है, परंतु किस तरफ सत्य है और किस तरफ असत्य है ये जाने बिना और जानने का कोशिश किए बिना, ये मोह के कारण ये अंगराज बनाया इसको। अंगराज एक छोटा सा राज्य दान किया, उसी एहसान का तल में दबा हुआ कर्ण जानता है दुर्योधन दुष्यंत सही नहीं है, शकुनी सही नहीं है, फिर भी उसका साथ देने पर मजबूर हो गया, ये सबको मार दिया। ये कर्ण मरा हुआ है, ये भीष्म मरा हुआ है, ये शकुनी मरा हुआ है, ये सब मरा हुआ है। मैंने पहले से इनका मार दिया। जिनका अंदर में जमीर नहीं है, जो सत्य को लेकर नहीं चल सकता, वे मरा हुआ इंसान है। उसका केवल देहो तुम नाश करोगे, उसका अंदर का आत्मा वो मेरा सनातनी है, उसका अंदर का आत्मा कष्ट अनुभव कर रहा है, उसका अंदर का आत्मा कष्ट अनुभव कर रहा है, इसलिए मैं भी कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ही वो आत्मा का स्वरूप है। ये देहो को नाश कर, ये देहो अपवित्र है। जो देहो नारी को सम्मान नहीं कर सकता, जो देहो हरिचांद गुरुचांद का आदर्श को नहीं मानता, जो देहो गौरांग महाप्रभु का प्रेम को नहीं मानता, जो देहो रामकृष्ण परमहंस देव का उपदेश नहीं मानता, जो देश स्वामी विवेकानंद को नहीं मानता, जो व्यक्ति इंसान को इंसान नहीं, मानव को मानव नहीं, जीव को जीव नहीं, केवल एक कौम, एक अपना ही मजहब के लिए सबको मौत का घाट उतार देता है, नारी के ऊपर अत्याचार करता है, दूसरों का संपत्ति लूटता है। ये दुर्योधन तेरा संपत्ति लूटा, मैंने 5 गांव मांगा था, लेकिन इसने 5 गांव भी नहीं दिया। इसने बोला सुई में जितना संपत्ति आएगा उतना भी बिना युद्ध में नहीं दूंगा। ये संपत्ति हरणकारी दुर्योधन, ये नारी का निर्यातन देने वाला दुशासन, ये दुर्नीति वाला गांधार का शकुनी, ये सत्य को जानते भी सत्य को विचार नहीं करने वाला ये धृतराष्ट्र, ये प्रतिज्ञाबद्ध, जो प्रतिज्ञा सत्य के लिए होना चाहिए कि मैं सत्य के लिए जीवन भर कार्य करूंगा, लेकिन विश्व ने सत्य के लिए कार्य करने का बजाय उसने प्रतिज्ञा किया कि जो कुरुक्षेत्र का इस राज में बैठेगा मैं उस राजा का सपोर्ट के लिए जिंदगी बिता दूंगा। ये उसका गलती प्रतिज्ञा था, इस गलत प्रतिज्ञा था। विश्व की यह प्रतिज्ञा करना था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं आजीवन सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। जिसके पास सत्य होगा, जिसके पास न्याय होगा, जिसके पास धर्म होगा, मैं उसी के साथ खड़ा होऊंगा। ये प्रतिज्ञा भीष्म को करना था। प्रतिज्ञा का भीष्म का जो प्रतिज्ञा है वो गलत था। भगवान ने समझाया था अर्जुन को, तुझे मारना होगा, मैंने पहले से मार चुका, इसका जमीर मार चुका है, इसका विवेक मार चुका है। ये आतताई है, ये महिलाओं को सम्मान नहीं देता, ये दूसरों को सम्मान नहीं देता, ये किसी समाज को, किसी धर्म को नष्ट करने में तुला हुआ है। इसको आतताई, इसको आतंकवादी समझ करके इसका विरोध कर, इसको मार डाल, इसको नष्ट कर दे। हम किसी का
शरीर को मारने का आदेश नहीं देता, हम किसी का संपत्ति जलाने का आदेश नहीं देता, परंतु हमारे ऊपर होते हुए अत्याचार का विरोध में कम से कम हम खड़े तो हो सकते हैं ना, इतना तो हम कर सकते हैं। यही बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, केरल में, सारा जगह में जहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम सनातनी निरीह, हम सनातनी शांत प्रकृति के हिंदू, हमारा मातृ जाति का रक्षा होना चाहिए, हमारा संस्कृति का रक्षा होना चाहिए, हमारा जीवन, हमारा माल का रक्षा होना चाहिए। और इसके लिए इस सभा से भी और इस गुप्तपड़ा मंजरी इस क्षेत्र से भी आपको होकर के हम भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए और इस निरीह हिंदुओं को कम से कम अपना जीने को उनको सहारा देना चाहिए। यही आज का ये मांग है। हमने इससे पहले भागवत कथा की और भागवत कथा के बाद एक हिंदू सभा किया और इस हिंदू सभा में आप सब भाग लिया और 7 बज गया। मैंने कहा था कि 3 से 6, अगर 3 में शुरू करूँ तो 6 बजे समाप्त करूँ, अगर 4 से शुरू करूँ तो 7 बजे समाप्त करूँ। इसीलिए ये नारा के साथ आज का ये भागवत कथा एवं हिंदू जनसभा का मैं समाप्ति का घोषणा करूँगा। आप एक बार हमारे साथ खड़े हो जाए और ये नारा को हमारे साथ कहे ताकि नारा साउंड जोड़ दो, ताकि हमें भी ये लगे कि यहाँ पर आकर के जो हम आपके सामने जो बात को रखा, आपके मन में भी वही बात है जो हमारे मन में है। आप भी हमारे साथ वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ, आप भी वही हिंदुओं के पक्ष में हैं और वही जिहादी आतताई का विरोध में आप नारे लगा रहे हैं। हम ये नारे इसलिए लगा रहे हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार के ऊपर ये दबाव डाले कि बांग्लादेश में जो हिंदू असुरक्षित है, दुख में है, तकलीफ में है, उनका पूरा का पूरा रक्षा हो, उनका पूरा का पूरा उनके लिए व्यवस्था हो। यही नारे के साथ आज का ये समाप्त होगी। जिहादी आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिहादी आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 जिहादी आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू आप जाग जाग जाओ, जाग जाओ, हिंदू आप जाग जाग जाओ, जाग जाओ। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं का अपमान, बांग्लादेशी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बांग्लादेशी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बांग्लादेशी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पाकिस्तानी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पाकिस्तानी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, अफगानिस्तानी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, अफगानिस्तानी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कश्मीरी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कश्मीरी हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हिंदुओं तुम शरण छोड़ो, एकता जोड़ो, एकता जोड़ो, एकता जोड़ो, एकता जोड़ो, हिंदुओं तुम शरण छोड़ो, एकता जोड़ो, एकता जोड़ो, एकता जोड़ो, एकता जोड़ो। बांग्लादेशी सरकार होश में এই মাঝখানে আনো তাহলে দেখা যাচ্ছে। बांग्लादेशी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 जिहादी आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 जिहादी आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय 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 हर हर महादेव हर हर महादेव शांति शांति राम शांति 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 विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 सारा शांति ओम शांति 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 चली चली आरती जय जगदीश्वर हरि ओम तत्सत् हरि ओम